नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने आज करीमनगर में मजलिस बल्दिया की तरफ से मुनक़िदा एक मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हर वायरल बीमारी डेंगू नहीं होती और हुकूमत दरकार मकदार में दवाएं फराहम करते हुए तमाम सरकारी दवाखानों को तिब्बी सहूलतें बहम पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि इस साल डेंगू के केसेस गुज़श्ता साल के मुकाबले में बहुत कम हुए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आम बुखार और बीमारी को डेंगू समझकर उसके मायनों पर गैर ज़रूरी पैसे खर्च न करें। वज़ीर सेहत ने कहा कि तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर भी किसी भी किस्म के बुखार के इलाज की सहूलत फराहम की गई है और हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट के औकात को शाम तक बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ अजला और शहरों में हेल्थ कैंप भी मुनक़िद हो रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया बी वेणुगोपाल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मनोहर और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रसूलपुरा बेगमपेट पुलिस लाइन में आज हरिताहरम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके दौरान शजरकारी की गई। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के सदरनशीन दामोदर गुप्ता और DGP महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हुकूमत पुलिस मुलाजिमीन को रिहायशी सहूलतें फराहम करने के मंसूबे रखती है। सिंगल क्वार्टर्स की जगह हमा मंजिला शानदार इमारतें जो अच्छे फ्लाइट्स जैसे होंगे बनाने की तजवीज़ है। पुलिस लाइन में हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि वहाँ रहने वालों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाना न पड़े। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी, तेलुगु फिल्म अदाकारा जयासुधा साई ब्रानी ने शजरकारी प्रोग्राम के तहत दरख्त लगाए। इन मेहमानों ने बाद बेगमपेट ट्रैफिक लर्निंग सेंटर का मुआयना भी किया। డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ గారు అంజనీ కుమార్ గారు ఆధ్వర్యంలో లాస్ట్ వీక్ కూడా మరి హరితహారం కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। కోశామహల్ లర్నింగ్ సెంటర్, అలాగే బటాలియన్స్లో, జైల్లో రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు హరితహారం కార్యక్రమం చేపట్టినప్పటి నుండి ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికన మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వరకు హరితహారం చేపట్టడం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే। దానిలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు కూడా మరి ప్రతి ఇంటికి 6 మొక్కలు నాటాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజు గోల్కొండ జెండా వందనం రోజు పిలిపించారు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా 6 మొక్కలు నాటాలి। దానిలోనే భాగంగా రాష్ట్రంలో హరితహారం చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నది। మరి ఈరోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మరి గౌరవ మహేందర్ రెడ్డి గారు, DGP గారు, మరి పెద్దలందరూ కూడా సీనియర్ IPS ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది, చాలా సంతోషం। మరి మీ ద్వారా గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనే కార్యక్రమం కూడా మరి సంతోష్ కుమార్ గారు గౌరవనీయులు రాజ్యసభ సభ్యులు ఒక గ్రీన్ ఛాలెంజ్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు। మరి దాంట్లో చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, పెద్దలు, మరి కేంద్ర మంత్రివర్యులు, మాజీ గవర్నర్ గారు, మరి భారత ఉపరాష్ట్రపతి గారు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు, చాలామంది IPS IAS ఆఫీసర్లు, క్రీడాకారులు, సినీ ఆర్టిస్టులు ఎందరో ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఒక మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి మరి నిజంగా సంతోష్ కుమార్ గారు ఒక మంచి కార్యక్రమం చేశారు। మీ ద్వారా వారికి అభినందనలు, కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం। దానిలో భాగంగానే మేము కూడా ఈరోజు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడ హరితహారం మొక్కలు నాటడం జరిగింది। మరి నేను మీ ద్వారా గ్రీన్ ఛాలెంజ్ మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇందిరా కిరణ్ రెడ్డి గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ SK జోషి గారు, జయసుధ గారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్, మాజీ శాసనసభ్యురాలు, మరియు తనికెళ్ళ భరణి గారు, ఈ నలుగురికి మీ ద్వారా గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఇస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా నలుగురు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు। మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్పడం జరిగింది। వారందరూ కూడా మనిషికి ఒక 3 మొక్కలు నాటి వారు కూడా ఇంకొక ముగ్గురిని ప్రతిపాదించాలని మీ ద్వారా కోరుతూ మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమం మరి పోలీస్ IPS ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా మరి పిలిచి DGP గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు మరి వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి అందరం పాల్గొందాం అనేది నిజంగా వారికి CP అంజనీ కుమార్ గారికి, ఇక్కడ DCP నార్త్ గారికి శుభాకాంక్షలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు మరి పోలీసు ఉన్నతాధికారులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తాను। मैत्री इंजीनियरिंग कॉलेज सईदाबाद के तुलबा ने आज फ्रेशर डे मनाया, जिसके दौरान नए साल के तुलबा व तालिबात का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया।
कॉलेज के प्रोफेसर शेखरन ने बताया कि उनके कॉलेज में बेहतरीन माहौल फराहम किया गया है। सीनियर तलबा जूनियर तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और तालीमी कैरियर में उनकी रहनुमाई और मदद भी करते हैं। డాక్టర్ డి హనుమంతరావు గారి ఆధ్వర్యంలో నిన్న ఈరోజు ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ మరియు సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలందరూ అత్యుత్సాహంగా పాల్గొని డ్యాన్సింగ్, సింగింగ్, మోనో యాక్టింగ్, మొదలగు కార్యక్రమాల్లో అత్యుత్సాహంగా పాల్గొని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అందరూ ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ముందుకొచ్చి అత్యుత్సాహంగా टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। 400 साल कदीम और तारीखी गोलकुंडा के मोती दरवाजे से मुत्तसिल दीवार कल रात शदीद बारिश के बाद गिर गई। जेएसएमसी के हुक्काम ने आज सुबह भारी अमले और JBC की मदद से माबकी मखदूश दीवार को मुनज़्ज़म कर दिया ताकि मुस्तकबिल में कोई जानी या माली नुकसान न हो। दीवार गिर जाने के वाक़े की खबर आम होते ही हज़ारों लोग उसके मुशाहिदे के लिए वहाँ जमा होना शुरू हो गए। पुलिस को लोगों पर काबू पाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलुगु फिल्मी अदाकारा निभा नितेश ने पैटनी सेंटर सिकंदराबाद में आर्यस ब्रदर्स के नए शोरूम का इफ्तिताह किया। इस शोरूम में दशहरा और दिवाली के लिए हम अक़साम का नया स्टॉक और कलेक्शन रखा गया है। आर्यस ब्रदर्स के डायरेक्टर्स B वेंकटेश्वरलू, N राजमौली, प्रसाद राव और P सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि आर्यस ब्रदर्स गुज़श्ता 25 साल से वाजबी कीमत पर मर्द और ख़वातीन और बच्चों को मियारी और जाज़िब नज़र मलबूसात फ़रोख्त कर रहा है। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उसके 11 शोरूम्स हैं। उन्होंने आइंदा बरसों में मजीद शोरूम खोलने और अपने कारोबार को वसअत देने का ऐलान किया। हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी प्रणीत ग्रुप एक नई कैब सर्विस प्राइडो 29 सितंबर से लॉन्च करने जा रही है। इस कंपनी में 3 किस्म की यानी हैचबैक, सेडान और SUV गाड़ियां आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगी। 14,000 ड्राइवर्स की पहले ही से भर्ती हो गई है। कंपनी के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर के नरेंद्र कुमार ने कहा कि मुसाफिरीन के महफूज सफ़र और ख़वातीन की सियानत के लिए उनकी कैब सर्विस को हुकूमत तेलंगाना के हाक आई ऐप से मरबूत किया गया है। कंपनी ने आइंदा 3 माह में 1 मिलियन अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया है। मुसाफिरीन 1 हफ्ता और 1 महीना पहले भी अपनी कैब बुक कर सकते हैं। कैब सर्विस के जरिए एक मकाम से दूसरे मकाम बल्कि रास्ते में मुख्तलिफ स्टॉप और भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मखसूस इलाके में कैब्स दस्तयाब नहीं है तो पार्टनर कंपनियों के जरिए जायज़ सर्विस चार्ज पर कैब फराहम की जाएगी। शानदार चब्बों और छक्कों के जरिए अपनी हरीफ टीम को
चारों खाने चित करने के लिए मशहूर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में खुद भी कामयाब हो गए और अपने पैनल को भी भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात अजहरुद्दीन के लिए विखार का मसला बना हुआ था, क्योंकि इनके हरीफों ने गुज़िश्ता मरतबा उनके खिलाफ साजिश रचते हुए उनकी पर्चे नामजदगी को खारिज करवा दिया था। आज शाम देर गए जारी करदा तफसीलात के मुताबिक अजहरुद्दीन का पूरा पैनल मुंतखब करार पाया। उनमें नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन और काउंसलर के ओहदे शामिल हैं। अजहरुद्दीन ने जुमला 147 वोट हासिल किए और साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेकानंद के पैनल के सदारती उम्मीदवार प्रकाश चंद जैन को 74 वोटों से हरा दिया। मुखालिफ पैनल के उम्मीदवार दिलीप कुमार को सिर्फ 3 वोट मिले। अजहरुद्दीन पैनल से ताल्लुक रखने वाले नायब सदारती उम्मीदवार जॉन मनोज 48 वोटों की अक्सरियत, सेक्रेटरी ओहदे के उम्मीदवार विजय आनंद 75 वोटों की अक्सरियत, जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार नरेश शर्मा ने 132 वोटों और खाजिन के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने हरीफ के मुकाबले में 21 वोटों की भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाई। अनुराधा को काउंसलर मुंतखब कर लिया गया। जहीराबाद पुलिस डिवीजन के शांतिनगर इलाके में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट पुलिस की निगरानी में एक डीएसपी, 3 सर्कल इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर और 100 से ज्यादा पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। घर घर तलाशी के दौरान आधार कार्ड और दूसरे शिनाख्ती कार्ड की तनखी की गई। डीएसपी एन रवि ने मीडिया को बताया कि बिना दस्तावेजात की 13 बाइक्स और एक ऑटो को जब्त किया गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अजनबी लोगों को मकानात किराए पर न दे और किसी भी मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी पुलिस को इत्तला दे। हुकूमत तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर ने आज टीआरएस एलपी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीपीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी अहलिया पद्मावती पर तनकीद करते हुए बतलाया कि साबिका असेंबली इंतखाबात में सदर कांग्रेस ने चैलेंज किया था कि कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाने में अगर नाकाम होती है तो वो सियासी संन्यास ले लेंगे, लेकिन इस पर इन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन अब रियासत के हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में आवाम इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने उत्तर कुमार रेड्डी के जैसे बात कर, जो भी बात करता हूँ मुंह से बात करता, मगर बात के ऊपर कभी भी नहीं ठहरते। परसों इलेक्शन में 2018 में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में गदवाल से हमारे केटीआर साहब ने एक बात पूछा कि उत्तम कुमार रेड्डी को, अगर से इलेक्शन में हम जीते तो आप पॉलिटिक्स से हट जाते बोल के पूछे थे। जब उन्होंने हमारे सवाल को यकीन एक्सेप्ट करके एक ही बात बोला, अगर से दोबारा गवर्नमेंट को टीआरएस आएंगे तो मैं और मेरा बीवी दोनों भी पॉलिटिक्स में नहीं रहते बोल के जब वादा किया, ये बात अखबार में आए और मीडिया में भी आए। उसके बाद में इलेक्शन में टीआरएस 88 सीट जीत के फिर गवर्नमेंट को आए, मगर उन उत्तम कुमार रेड्डी ने जो बात बोला उसके ऊपर कभी भी निभाया, उन कभी भी खड़े नहीं खड़ा। उन कंटिन्यूस फिर पीसीसी प्रेसिडेंट वो कंटिन्यूस हो रहा, फिर आज बोल रहा हुजूर नगर में पूरा गवर्नमेंट वो कर रहे हैं, इनको इसको पूरा हटकर हुजूरनगर इलेक्शन में गवर्नमेंट पूरा मिसयूज कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। ये बात हर एक बात बोल के ये लोग इलेक्शन में थोड़ा फायदा उठा के बाद में भूल जाने वाला उत्तम कुमार रेड्डी। हुजूरनगर का आज इलेक्शन ऐसा चल रहा है कि 4-5 बार इन वहां पे जीता था, वहां पे क्या करा बोल के वहां के वोटर सोच रहे, मगर 2014 में गवर्नमेंट आए सो टीआरएस पार्टी लेफ्ट कैनाल से 3 टाइम्स वहां पे खेती को पानी दे रहा, वहां पे जो भी फार्मर्स है बहुत खुशी में है। इसीलिए उधर का
हुजूरनगर के लोग एक ही सोचते, अगर से दोबारा उत्तम कुमार रेड्डी को जिताएंगे तो ये स्टेट में पूरा ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रहा, उसको रोकने के लिए कोर्टों में जा रहा, हर एक जगह ये रोक रहा। अगर से हुजूरनगर में भी दोबारा जीते तो फिर वहां पे होते सो डेवलपमेंट को ये रोकेंगे बोल के हुजूरनगर के लोग सोच रहे हैं। उसीलिए हुजूरनगर में जरूर हमारे जो कैंडिडेट सईद रेड्डी है वो जीतेंगे। और एक बात यह है कि सईद रेड्डी ने किधर से न्याय सो आदमी है, वो मटमपल्ली मंडल गुंडलपल्ली गांव का है। वो निजाम गवर्नमेंट में उसका दादा पुलिस पटेल था, उसका फादर 81 में सरपंच था, उसका माँ भी सरपंच था। निजाम से स्टार्ट होके अब तक वहां पे जो भी लड़ाई होता और जो भी लोगों के तरफ से लड़ना होता, उसका बाप उसको लीड करे सो लीडर है। कभी भी सईद रेड्डी नॉन लोकल नहीं होता, मगर अगर से नॉन लोकल होता तो पद्मावती ने नॉन लोकल होता, क्योंकि वो पैदा हुए सो बेंगलुरु में, उसका दादी कर्नूल से है और रायलसीमा के है। इसीलिए वो लोग रायलसीमा का और बेंगलुरु के रह के हमारे सईद रेड्डी के ऊपर छुप के गलत इल्जाम लगा के उनको बदनाम करने के लिए सोच रहे। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हिंदुस्तानी फौज का एक हेलीकॉप्टर भूटान में सोनभला के मुकाम पर गिर जाने के नतीजे में 2 पायलट हलाक हो गए। वज़ारत दफ़ा ने आज बताया कि यह हादसा तकरीबन 1 बजे पेश आया। अरुणाचल प्रदेश के खरमू के मुकाम से यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरा था। रॉयल भूटान आर्मी का एक कैप्टन और आर्मी एविएशन का एक लेफ्टिनेंट कर्नल महलूकीन में शामिल है। इंडियन एयरफोर्स और फौजी हेलीकॉप्टर्स लाशों और हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश करने में लगे हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने सियाहत को मईशत में इजाफे का अहम जरिया करार दिया और कहा कि इसके फरोग के लिए तमाम इकदाम करने की जरूरत है। टूरिज्म के आलमी दिन के मौके पर दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे से जुड़े लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खास तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक का इन्हिसार टूरिज्म पर है और हिंदुस्तान में भी उसे आमदनी बढ़ाने के मौके हैं। उन्होंने ख़वातीन से कहा कि वो सियाहत के शोबे में अपना कैरियर बनाए। ट्रैवल एंड टूरिज्म के माशी फोरम ने हिंदुस्तान को 34वां मुकाम दिया है। हिंदुस्तान ने सयाहों को राग़िब करने
वीजा की पॉलिसी में भी काफी नरमी दी है। नायब सदर जमहूरिया ने नौजवानों से कहा कि वो 2023 तक मुल्क के कम से कम 15 सियाहती मकामात का दौरा करें और देसी सियाहत को फरोग दें। नायब सदर जमहूरिया ने तकरीब के बाद प्राग के वजीर सियाहत से मुलाकात की और हिंदुस्तान और प्राग के दरमियान सियाहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जोराब पोलो लकोशी से भी मुलाकात की। Marks the celebration of two sets of values, one of which relates to values held dear all through his professional career by a person, and other being the family values which are the most cherished in our society. Parliament and judiciary are among the three pillars of our parliamentary democracy. In respect of Parliament, it is said that members rush to the well of the House when they are short of facts. About the courts, it is said that the lawyers raise their voice when they are short on law. Late Sri Pavani Parameswar Rao, widely known as PP, was bound by a set of values that are usually associated with the old world all through his 40-year-long career and still emerged as among the best legal minds of our country. I, being from the same district as a student, we all used to consider him as a hero because from our small place, a man rising to such heights and being popular in Delhi was a very happy news to all of us. My dear friends, he started his career as a law teacher, earning about, I'm told, around 400 rupees per month, and made his way up to earn the same for less than a fraction of a second of his time as an impactful lawyer. PP was neither flashy nor flamboyant. He did not resort to histrionics in the court when the bench was not considered to his point of view. He never raised his voice and was never discourteous to the court. In the words of Sri Abhishek Manu Sangvi, the defining characteristics of PP were sobriety, balance, and equanimity. PP always shunned vulgarity of speech or conduct, and he never trivialized the issue at hand. His advocacy was marked by inherent balance, restraint, and genetic gentlemanliness, which were manifestation of either inherent inner calm and stability or cultivated by some special form of meditation. PP always considered the client as Annadatta. PP himself wrote in one of his articles in the book released today that advocacy is a profession, not business. Srimati Mahalakshmi Pavani, PP's daughter-in-law, and the spirit behind this book is that she never got the open support and hand-holding expected of her influential father-in-law. PP's mantra to his kith and kin was, deserve what you desire. And there is no substitute for hard work. When he delighted Mahalakshmi Pavani, informed PP that she was designated as senior advocate, PP retorted saying, nice, when it has become so easy. PP had even supported Mahalakshmi's opponent for the post of Vice President of the Supreme Court, Bar Association, saying that such office should be held by more experienced lawyer. In my view, Parameswarji became PP by virtue of his unflinching faith in the principles of power of property, and he was guided by this principle in the pursuit of truth as defined by the laws of the land. Hence, the release of this book marks the celebration of such lofty values and ideals upheld by PP. Srimati Mahalakshmi seems to have had a grudge against her father-in-law for not backing her in the profession to the extent expected. However, this has made her what she is today on her own as a senior advocate in the Supreme Court, and she can be rightly proud of her accomplishments. This is what happens. Perhaps this is what PP has expected. Mahalakshmi conformed to his principles of deserve and desire. Despite not getting open praise for support from her father-in-law, Srimati Mahalakshmi Pavani, out of her respect for the life and legacy of PP, took upon herself the responsibility of bringing out this book, Parameswara to PP, containing 48 illuminating articles written by PP, besides revealing tributes to him by several legal luminaries.
This book, in my view, will serve as a useful guide to the practitioners of law and students of law on a range of issues, including how to prepare a brief, present a case with a proper forming of issues, and then argue the case with clarity of analysis, conduct oneself in the court with the fellow professionals. This task undertaken by Srimati Mahalakshmi for the benefit of the posterity, in my view, is squared by the family values of gratitude to the head of the family, who instilled the core values and principles in life in his family members. Hence, release of this book is also a celebration of such values. My common thread with PP being that he was also graduated from my hometown, Nellore. Being in Delhi for long years, I have had some idea about PP's rise to the top, but got a better peek into his mind and life when I read some of his articles contained in this book. Whoever had any problem on the legal side from that area, they used to approach him, even without knowing him also. And he was so kind and so patient to hear the rural people understand their problems and take up their brief. PP had been associated with quite a few landmark judgments of the apex court that set precedents. I came to know from this book that PP was instrumental in the coming into being the instrument of curative petition. After his forceful and successful articulation of the right to appeal in the A.R. Antule case, as explained just now. The petition is filed when a review petition for correcting a wrong committed by the court is rejected. He also pronounced and propounded the doctrine of common thread in the S.R. Bommai case, besides articulating that secularism is inbuilt in the basic structure of our Constitution. The concerned benches of the Supreme Court on several occasions went on to record appreciating his analysis and presentation of PP in broadening the perspective of interpreting the Constitution. 2 हफ्ते कबल सऊदी अरब में तेल की तस्सीबात पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने तेल की अहम तस्सीबात पर पैट्रियट मिसाइल लगाने और 200 अमेरिकी फौजी जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। पेंटागन के चीफ तर्जुमान जोनाथन हाफमैन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पैट्रियट मिसाइल से ममलिकत में फौजी और सिविल तस्सीबात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस फैसले से अरब दुनिया में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के वादे की तकमील होती है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफा की खातिर गल्फ को मजीद फोर्स रवाना करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। 14 सितंबर को हुए ड्रोन हमलों में सऊदी अरब में पेट्रोल की पैदावार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है और उसकी 5% रोज़ाना की पैदावार घट गई है। इलाके अल बकीक में तेल पैदा करने वाली बड़ी कंपनी आरामको की तरसीबात है। यमन के बाकी होशियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब का मानना है कि ईरान इस हमले के पीछे है। हालांकि ईरान ने इसकी पुरजोर तस्दीद की और कहा कि अमेरिका शिद्दत के साथ मुहिम चलाते हुए ईरान को बदनाम कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक सदारती एलामिया जारी करते हुए ईरान हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों और उनके अरकान ख़ानदान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।